Good morning, friends. This is Satyam Misra, and I welcome to all of you on your own YouTube channel, Effective Education Point. Friends, today I am going to explain you the next chapter of Flamingo book in class 12th, and the name of this chapter is The Rat Trap, and this has been written by Selma Lagerlöf. In this story, you will see what is the value and what is the disadvantages of greed and the extra expectations, extra greed and extra ambition, how it is harmful in our life. मीन्स ये हुआ कि आप इस स्टोरी में ये देखेंगे कि जिस तरह से हम रेड ट्रैप यूज करते हैं और रेड जो है वो उसमें रखी हुई चीज को पाने के लिए खुद आता है और फिर वो उसमें फंस जाता है। इसी तरह से this rat trap is going to be used as a metaphor by the writer, and she is saying that rat trap, it means the basic theme of this chapter is that world offer riches and joys as baits to trap a man, just as a rat is fooled by bait and gets trapped. Most human beings also fall into the trap of material benefit. It means the writer wants to convey this message that this world is a kind of big rat trap where the offers of riches and joys and all over the good thing, whatever we are looking, we are going to have, we are going to find it, and so the reason we are going to commit such mistakes, and due to that material desire, due to that product ambition, we are going to be trapped in that big rat trap, in that in the world like a big rat trap. कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्टोरी है वो ये मैसेज दे रही है कि जिस तरह से हम अपने घरों में एक रेड ट्रैप रखते हैं, रेड को पकड़ने के लिए हम उसमें चीज या ब्रेड लगाते हैं, उसी तरह से ये जो वर्ड है ये भी एक बिग रेड ट्रैप की जगह है, एक बिग रेड ट्रैप की जगह है जहां बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको अट्रैक्ट करती है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है, बहुत सारी सुंदर चीजें भी है और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आपका जॉयस है, जिसमें आपका रिचनेस है, जिसमें आपका बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पाने के लिए कभी कभी हम गलत रास्तों का चुनाव करते हैं और जब भी हम कोई गलत रास्ता चुनते हैं तो रिजल्ट हमें उसी प्रोपोर्शन में मिलता है। मीन्स अगर हम गलत करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें गलत मिलेगा और अगर हम सही करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें सही मिलेगा। मेनली इस चैप्टर का थीम यही है कि द पर्सन हु इज गोइंग टू बी अट्रैक्ट by such things in the world, he is going to be trapped in that big rat trap and then his life is going to be spoiled as usual as the rat is going to be trapped inside. जिस तरीके से कोई एक रैट जो है वो ट्रैप हो जाता है किसी चीज या ब्रेड को लेने के लिए, उसी तरह हम जो हैं इस वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको पाने के लिए उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और जब हम अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा वाली चीजों का एक्सपेक्टेशन करते हैं, एम्बिशन करते हैं और उसको पाने का हम अपने मेहनत से नहीं कर पाते हैं तो हम गलत तरीके से उसे पाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने का मतलब ही हुआ कि हम उसमें फंस जाते हैं। तो इस चैप्टर में भी आप देखेंगे कि इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी देयर इज अ रेड ट्रैप सेलर who is trying to sell rat trap in everyone houses, moving in the marketplace, moving in surging crowd. So while he was selling rat trap, so for some time he was thinking how monotonous or how useless work he is doing while he is selling his rat trap to other. But suddenly one day at a moment he thought that the rat trap whatever I am selling, this is not only related to the life of the rat only. Even he thought that this whole world where I am living, this is also a kind of big rat trap where we people are going to be trapped day by day according to our mistakes, according to our desire, according to our heavy and extra expectations. Such things are going to be happen with the rat trap seller also.
Once while he was moving to the market and he was selling that tractor to others, so he visited to a place where an old man was living in a house, and there he reached and he asked, will you please give me shelter for today night only? So that old man was there single in the house. So he was thinking that there is no one in the family. So if I am going to allow him, if I am going to permit him to be in my house for that night, so that will be good moment, because of there I can talk to that stranger, there I can play game with him, and by doing so I can easily spend my night. As you are knowing कि जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो जनरली उनको लोग समझते हैं कि ये किसी यूज की चीज नहीं। अगर परिवार में, वो कहने का आशय ये हुआ कि जिस परिवार में कोई ओल्ड पीपल अकेला हो, उसके लिए वो मोनोटोनस लाइफ है, इसलिए कभी कभी वो अपने आप को प्लेजर देने के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां वो लोगों से बैठकर बात कर सके। तो उसी एक एम्बिशन में, उसी एक ड्रीम में ये ओल्ड मैन जो है वो उस रेड टेप सेलर को अपने घर में उस रात रुकने का जगह दे देता है। Means he allowed to the man to be in the same house with him on that night. Why? Because he was thinking that while talking to him and while playing game with him, that night is going to be passed quickly, easily. So what happened? Now that old man is going to tell everything about his economic condition, about the money and all over the thing, how he is surviving his life, from where he is having money. So he also told him that last day he earned 3 kroners, and he also saw that pocket where that 3 kroner has going to be kept by that old man. So when this red tape seller see that 3 kroner note in that leather pocket, then a kind of greediness, a sense of greediness, came in his mind. So when in the next morning, this old man and this red tape seller, both is going to leave that house at the same time. They both went to, somewhere from that house, but after half an hour, this red tape seller returned to the same place, and then he tried to take that leather pocket from a stick, and then from that leather pocket, she collected that 3 kroner note back. मीन्स ये हुआ कि उस रात को उस बूढ़े आदमी ने इस रेड टेप सेलर को अपने साथ रात में रुकने का जगह दे दिया, और उसने उस रात में बातचीत में ये सब बताया कि पहले वो उस रामजी आयरन मिल में काम करता था, उसके पास पैसे ऐसे ऐसे मिला करते थे। फिर उसने बताया अभी मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ, और उसी के थ्रू, उसके मिल्क के थ्रू मैं कुछ पैसे कमा लेता हूं, जिससे मैं अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहा हूं। फिर वो उसे वो पैसे भी दिखाता है जो उसको मिल्क सेलिंग से मिलता है। तो रेड टेप जो है, जो ये पहले कह रहा था कि ये पूरी दुनिया ही एक रेड टेप की तरह है, अचानक उसके मन में भी ग्रीडीनेस का सेंस आ जाता है। और जब सुबह ये दोनों व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं, तो रेड टेप सेलर जो है वो आधे घंटे के बाद दोबारा वहां वापस आता है, और फिर वो उस लेदर पॉकेट से वो 3 kroner नोट निकाल लेता है। पहले उसको ये लगता है कि वो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, और एनी हाउ वो पैसे कलेक्ट करके निकल जाता है। लेकिन वो पैसे चोरी करने की वजह से डर के रास्ते से न जाके जंगल के रास्ते से जाता है, और जब वो जंगल के रास्ते से जाता है तो जाते ही जाते उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई एंडिंग ही नहीं है, ये जो जंगल का एरिया है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़े ही पल के बाद उसको रियलाइज हुआ कि वो उसने जो गलती की थी, जो ग्रीडीनेस दिखाया था, उसकी वजह से वो उसके लिए एक बेट्स की तरह था, एक प्रलोभन की तरह था, जिस प्रलोभन में वो अब फंस गया है। और फाइनली किसी तरह से वो शाम को रामजी आयरन मिल के पास उसको आवाज सुनाई पड़ती है और वो वहां पहुंचता है। फिर उसके साथ पहले अच्छा ट्रीटमेंट होता है, मगर बाद में उसकी गलतियां जब लोगों के सामने आ जाती हैं तो उसके साथ मिसबिहेव होने लगता है। और वही
जो उसका वहां का मालिक है वो उसे एज ए कैप्टन ट्रीट करता है, और ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो उसके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास नहीं करता है। मतलब वो अपने आप को एज ए कैप्टन वहां प्लेस कर देता है। और फिर क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए वो जो आयरन मिल का मालिक है वो उसे अपने यहाँ इनवाइट करता है, और वहां जब इसकी रियल स्टोरी उनके सामने आ जाती है कि ये थीफ है, ये एक रेड ट्रैप सेलर है, तो देन दे वर मिसबिहेविंग विद हिम। तो देयर इसकी जो बेटी है एडला वो सपोर्ट करती है और वो कहती है कि किसी को अपने यहाँ इनवाइट करने के बाद इस तरह का मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, और उसके सपोर्ट से इनको एक अच्छा वेलकमिंग मिलता है और रिस्पेक्ट मिलता है। फिर फाइनली जब वो उस प्रोग्राम के बाद वो घर छोड़ के जाने लगता है, उस समय उस परिवार के लोग वो चर्च गए हुए हैं वर्शिप के लिए, और उस समय जब ये उनका घर छोड़ के जाता है तो वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम और अपनी सारी रियलिटी एक्सप्लेन करता है। और वो 3 क्रॉनर नोट जो उसने उस बूढ़े व्यक्ति के घर से चुराया था उसको वो वहां रख देता है। एंड शी रिक्वेस्टेड टू दैट गर्ल कि दिस 3 क्रॉनर नोट हैज बीन स्टोलन बाय मी फ्रॉम दैट ओल्ड मैन who was living along the road. So now I am requesting you to hand over this money to that man, because due to my greediness, due to the baits, I was also caught in that trap of the world. So this is the story. When I am going to repeat the theme of this, the story is based on the universal theme that the essential goodness in man can be awakened through understanding and love. The story revolves around the belief that the whole world is nothing but a big rat trap with all its temptations used as baits. Means इस वर्ल्ड में जो भी कुछ अच्छी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो अच्छी चीजें हमारी लाइफ में एक टेम्पटेशन की तरह हैं, एक प्रलोभन की तरह हैं, और उस प्रलोभन में हम आकर फंस जाते हैं। यही इस रेड ट्रैप का थीम है। जैसे एक बहुत संस्कृत का एक फेमस सी स्टोरी है, लोभस्य पापस्य कारणम। मतलब अगर हम लोभ करेंगे, अगर हमारे एम्बिशंस बहुत ज्यादा होंगे तो हमारी परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि हम अपने एम्बिशंस को कंप्लीट करने के लिए हमेशा अपने सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर जाते हैं। मैं आपको एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दूं, सुंदरकांड में भी एक दोहा है, उसमें कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। मीन्स अगर हम किसी भी तरह के बैड हैबिट से, किसी भी तरह के बेट्स से अननेसेसरी प्रभावित होते हैं तो हम अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हैं। फ्रेंड्स, here I try to explain you the summary of this chapter in easiest word by giving you so many examples to you. I think this concept is very clear to you. So if you are liking the content, so please like and subscribe my channel. Thank you very much.